Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Just 1 minute. Okay. Good evening, sir. Good evening. Or Good evening, sir. can you see me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So let's start the class. Let me set up the board first. Okay. So while I set up the board, so yesterday we did this 2-block problems. Okay. So friction between 2 blocks. Okay. So try out this problem. Assignment 2.1, question number 36. Try out this problem. Assignment 2.1, question number 36. फिर हो गया था ये हो गया था? करवा दिया सर आपने, हाँ सर. Okay, okay. Then assignment 2.1, question number 38. Question number 38. A stationary body is slowly lowered on a massive platform. ठीक है, उसको ट्राई कीजिए 38 को. Okay, let's try. Till that time, I will set up the board. So on weekends, how many classes do you have on Saturdays and Sundays? More than class and test More than? with something another exam test schedule. Okay. So for example, today, how many classes did you have? This is the third one. Different batches थे sir. This is Yeah. only one and Okay, extra test classes. Okay. Okay. So we are doing assignment 2.1. Try question number 38. Okay. Question number 38 says, a stationary body is slowly lowered on a massive platform, moving horizontally at a speed of 4 meters per second. Through what distance will the body slide to the platform if the coefficient of friction is 0.2? Okay. So first of all, tell me, everybody understood the question, right? Okay. Sir. So in the question, what is given as? Okay, so there is a platform, first of all. Okay. So this platform is moving with what speed? 4 meters per second. ठीक है. और उसके ऊपर जो है स्टेशनरी बॉडी इज लोवर्ड. तो स्टेशनरी बॉडी है मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे है. Yes, sir. ठीक है. तो रेस्ट पे है तो उसको आराम से रखा है. ठीक है. सो इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है. तो इसका जो है u वो 0 है. ओके. u is 0. ओके. सो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? इसका u 0 है. क्लियर बा सबको?
जब इसके ऊपर रखेंगे हम, okay, when we place the body on the conveyor belt or the platform, what will happen is that the platform will try to move the body with it. Okay, Yes, sir. this is what will Yes, happen. sir. What? What? What is the question? No, sir, no any question. Okay. Okay. So when the block is put on the platform, it will try to move the block also. Okay. So finally, when the block is settled with the platform, what will be the speed of the block? Final speed. It will be moving with the platform. Okay. So finally, V of block will be what? 4 meters per second. Do you understand that? Yes, sir. Okay, because finally both the block and platform will be moving with V is equal to 4. Okay, now tell me, what is the friction working on the block Fk? बात clear है सबको? Okay, Yes, sir. okay. So now tell me, if U is equal to 0, V is equal to 4 meter per second. So what is Fk? We have to find what? Distance. UMG. Okay. We have to find distance. Mu into M into G. Fk is this. Okay. So what is the acceleration of this block? Fk divided by M. M. So this will be nothing but mu into G. 2 meter per second square. Mu is given as what? Mu is given as 0.2 and G is given as 10. So acceleration is 2 meters per second square. Okay. So initially the speed of the block is 0. Acceleration is 2 meters per second square. And final V is given as 4 meters per second square. Okay. So now tell me, we have to find how much distance the block will travel. So what is the formula which connects A, V and S? Which formula connects? V square minus A square is equal to 2 Okay. S. First of all, tell me, this A is 2 meters per second square. So is this acceleration uniform or non-uniform? So uniform. Uniform. That means we can apply this formula. V square is equal to 2 square U square plus 2 into A into S. Okay. What is the V which finally it achieves? 4 Zero. meters per second square. So 4 square is equal to what is U? U is 0 plus 2 into acceleration is 2 meters per second and S. So what is S? 16 minus 16 divided by 4. Okay. So it is 4 meters. Okay. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर Yes. सर ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था सर स्टार्टिंग मुझे सर आप issue- बाद में देख लीजिएगा ये this is not my problem यार. See this I have been seeing a lot of times कि आप लोग लेट ज्वाइन करते हो तो कोई पूछ लेता है कि स्लाइड पीछे करके दिखा दीजिए सर, हम अभी हम ज्वाइन किए हैं. सो इफ योर क्लास इज एट 4 o'clock तो 4 o'clock पे ही ज्वाइन कीजिए ना, आप उससे पहले ज्वाइन कर लीजिए. क्लियर बात Yes, sir. है ना? तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, बट आगे से आप दो लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर बोलेंगे तो आप इस पूरी क्लास का टाइम बर्बाद होगा ना फिर ऐसे में. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली यू जो है 0 है क्योंकि स्टेशनरी ब्लॉक है ना, और प्लेटफॉर्म जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है. तो हमसे पूछा गया है कि जब ये प्लेटफॉर्म के साथ में चलने लगेगा तब तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा. तो हमने एफके से एक्सेलरेशन निकाला और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाया. ठीक है, ओके. लिख लिया सब लोगों ने ये? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now we are going to do one question. Okay. So just pay close attention to this. Okay. This question is important. Okay. Not important from, for example, the other point of view, but important in the sense it is crucial. Okay. Because many people have doubt in these type of questions. Okay. So the question is given as this. So there is a wedge. Okay. And the angle is given as theta.
Okay, and the mass of the wedge is m, and this is smooth. Okay, this is smooth. Okay, so on this mass, capital M, there is one other mass which is small m. Okay, there's another mass which is small m. Okay, so now there is a force acting on this block, on the wedge, not the block. Okay, so now we have to find, question is find maximum value. See, this question is similar to the last question that we did in the last class, जहां पर जो हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक था और उसके ऊपर एक और ब्लॉक था, ठीक है ना, और उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे. सिमिलर है, बट यहाँ पर ऊपर वाला तो ब्लॉक है, नीचे वाला वेज है. समझ के बात? Yes, Yes, sir. sir. हमने लास्ट क्लास में जो किया था उसमें नीचे भी ब्लॉक था, ऊपर भी ब्लॉक था, है ना. Yes, sir. फिर हम फोर्स लगा रहे थे, है ना. तो ऊपर वाला जो है उसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा या स्टैटिक रहेगा, वो हमने सिनेरियोस देखे थे. बट यहाँ पर क्या है, नीचे भी नीचे वेज है, ऊपर तो ब्लॉक है, और वेज के ऊपर फोर्स लगा रहा है. तो क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ till which the block will not slide up the wedge. ओके, तो हम फोर्स लगाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर चलने लगेगा. समझ गए बात? स्लाइड करने लगेगा. ठीक है, तो आपको जो है वो वाला मैक्सिमम एफ निकालना है. क्लियर बात सबको ये? Yes, sir. ओके, सो हाउ विल वी टैकल दिस प्रॉब्लम? ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है. अब मुझे बताइए, जब हम 2 ब्लॉक वाला सिस्टम करते थे तो वहां पर एफएस इज लेस देन म्यू एन करते थे. एफएस इज लेस देन म्यू एक्स के केस में क्या होता था? एफएस इज लेस देन एफ मैक्स के केस में क्या होता था कि ब्लॉक्स विल गो टुगेदर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, एफएस ग्रेटर देन एफ मैक्स के केस में क्या होता था? ब्लॉक्स विल स्लाइड. Yes, sir. Sir. yes, sir. बट हमें मैक्सिमम निकालना है फोर्स अप्लाइड, तो हम क्या करते थे? एफएस इज इक्वल टू एफएस मैक्स FS करते थे. max. यहाँ Yes, पर sir. क्रिटिकल पॉइंट होता था कि उसके पहले तो साथ में चल रहे हैं, उसके बाद में जो है स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. बात क्लियर थी सबको? Yes, sir. अब यही कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे. ठीक है, अब बताइए मुझे, अब एक एक करके चलते हैं यहाँ पे. तो ये मास m है, ठीक है. अब स्लाइड अप करेगा, ठीक है, तो स्लाइड अप करेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ. Down के तरफ. है ना, सॉरी, नीचे की तरफ लगेगा इसमें f. ठीक है, और m के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो नॉर्मल लग रहा है, और कौन सा लग रहा है m के ऊपर? एक MG. mg भी लग रहा है, mg भी लग रहा है. ठीक है, तो बताइए हमारा पहला स्टेप क्या था वहां पे? उसे एन निकालना. है ना, पहला स्टेप क्या था हमारा? ए टुगेदर, एड है ना, साथ में चल रहे हैं तो ए टुगेदर निकालना था. तो ए टुगेदर कितना था? ए टुगेदर कितना आ जाएगा? टोटल सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है? एफ F. डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? कैपिटल एम स्मॉल प्लस स्मॉल एम. ठीक है, क्लियर बात? Yes, sir. ओके, अब इस एक्सीलरेशन से चलाने के लिए इस मास के ऊपर कितना फ्रिक्शन लगाने की आवश्यकता है? अब इसके बाद ये निकाला था हमने. सर Yes, इसमें sir. हम कंपोनेंट नहीं ब्रेक करेंगे एमजी के एक्स डायरेक्शन में. जस्ट 1 मिनट. मैंने क्या किया है कि टोटल सिस्टम लिया है, तो mg, और ये तो y डायरेक्शन में लग रहा है ना, मैंने x डायरेक्शन में लिखा है ना फोर्स. देखिए, इधर ओके x सर. है ओके सर. और इधर y है. तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, x डायरेक्शन में नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर क्या है? f है, कैपिटल F. टोटल मास क्या है? m Okay, प्लस m, और एक्सेलरेशन है a टुगेदर. ठीक है, ओके. ओके सर. नाउ सी, अब इस ब्लॉक को देखते हैं एक बार, स्मॉल m वाले ब्लॉक को, है ना. इसको प्रॉपर रिजॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स तो इधर है, एफ एस. ठीक है,
एफएस है, जो कि थीटा पे है, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर फोर्स विच इज नॉर्मल फोर्स, है ना, और एक फोर्स लग रहा है mg। तो अब मुझे बताइए कि इस मास m पे सबसे पहले बताइए कि x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, fx कितना लग रहा है मास m पे। देखिए n का इधर कंपोनेंट क्या होगा, सर ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यस So सर n sin theta. ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 minus theta. ठीक है। तो n cos 90 minus theta, what is it? n cos 90 minus theta is N sin क्लियर बात सबको ये, प्लस फ्रिक्शन fs है, तो fx का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, fs का fs cos थीटा आएगा कि sin थीटा आएगा, fs एंड दिस इज थीटा, तो fs Cos cos theta. cos theta. प्लस fs cos थीटा, ठीक है। सर यहाँ पे हम इसको एफएस क्यों कंसीडर कर रहे हैं? कहां पर, सर फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक क्यों कंसीडर कर रहे हैं? ये तो अब स्लाइड अप के लिए हम उसको काइनेटिक नहीं, फ्रिक्शन पीछे अरे की तरफ ले आपको सकते हैं। लास्ट वाला प्रॉब्लम याद है कि नहीं, उसमें हम क्या करते थे कि वो वाला एफएस निकालते थे जिसके लिए वो साथ में चल सके। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम, हाँ सर, वो वाला Really है equal जो उसको एक्सेलरेशन फिर इस एफएस को हम उससे कंपेयर करेंगे ना, हाँ ओके सर, ओके। ओके सर। अभी तो हम साथ में चल रहे हैं ना इस दोनों के, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और ये है दिस, जस्ट 1 मिनट, दिस एफ एक्स क्या होता है, मास इंटू एक्स, Yes sir. ओके। और एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और दोनों साथ में जा रहे हैं तो एक्स क्या है, A together. एटीजी है, ATG है. एम एक्स इंटू एटीजी, और एटीजी की वैल्यू है एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, दिस इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गई, मतलब x डायरेक्शन में क्या हो रहा है। अब मुझे बताइए y डायरेक्शन की बात कीजिए, तो y डायरेक्शन में fy लिखिए क्या है इसके ऊपर। सबसे पहले तो n का y कंपोनेंट क्या होगा, n का x कंपोनेंट है n sin थीटा, तो n का y कंपोनेंट क्या होगा, N cos theta. N cos theta. क्लियर बात। mg तो नीचे ही लग रहा है तो माइनस mg, fs का y कंपोनेंट क्या होगा, माइनस fs sin थीटा। बात क्लियर है सबको, सर हाँ सर पिछले वाले मतलब जो सर प्रॉब्लम हम लोग कल किए थे उसमें तो सर एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक था, तब तो मतलब एक्सेलरेशन मतलब दोनों का सेम था, यहाँ पे भी सेम ही होगा। तो मैंने साथ में चलने के लिए बोला ना, पहला स्टेप तो वही है कि साथ में चल रहे हैं वो दोनों, तो साथ में चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही तो होगा। लेकिन सर यहाँ पे मतलब वो स्लाइडिंग है ना, वो स्लाइडिंग नहीं है ना, यही तो बोल रहे हैं बॉस कि साथ में चलेगा तो स्लाइडिंग कहाँ से होगी, अभी हम स्लाइडिंग थोड़ी कर रहे हैं। साथ में चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही तो होगा। Yes sir. तो एफ वाई क्या है, एन कॉस थीटा माइनस एम जी माइनस एफ एस साइन थीटा। अब बताइए जब साथ में चल रहे हैं तो दिस स्मॉल एम ब्लॉक विल मूव ओनली इन एक्स डायरेक्शन, इसका वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, No sir. नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि एफ वाई कितना होगा, 0. 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 इसको नहीं बोलते, एक और इक्वेशन यहां से आ गई, ठीक है। अब बात बताइए मुझे कि जब हम करते थे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स निकालना होता था तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता था,
मैक्सिमम फ्रिक्शन देखते थे। क्रिटिकल FS पॉइंट क्या equals होता था to जब FS एफ एस इज इक्वल टू क्या होता था? FS max. एफ एस मैक्स होता था। Yes. समझ के बात? तो एफ एस इज इक्वल टू, और एफ एस मैक्स क्या है? म्यू इंटू एन। समझ के बात? Yes sir. एफ मैक्स क्या है? म्यू इंटू एन। Yes sir. तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन है। ठीक है, तो अब इस एफ एस को यहां पर रख दीजिए। तो ये इक्वेशन, इसको 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, और एफ एस को सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, यहां पर आएगा n sin थीटा और एफ एस इज म्यू इंटू एन। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mf डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू, ऊपर तो होगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन हमारी 3 हो जाएगी। और इसी तरह से एफ एस को इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। एफ एस को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे अगर हम, तो आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो लेट मी चेक हमारे एक्सप्रेशंस करेक्ट हैं कि नहीं। पहला आया n इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस m साइन थीटा, और दूसरा एक्सप्रेशन है n इज इक्वल टू एम एफ बाय m प्लस m 1 बाय म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, या ठीक है, लिख लीजिए इस स्लाइड को, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? Yes, sir. एक सेकेंड सर। तो देखिए, हमने भी यहां पर एक नॉर्मल फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला और यहां पर भी, तो इक्वेशन 3 और 4 बराबर हैं, है कि नहीं? Yes sir. ओके, सो 3 इज इक्वल टू 4 कर दीजिए आप लोग, और वहां से कैपिटल एफ की वैल्यू निकालिए। जिनका हो चुका है वो करिए। 3 इज इक्वल टू 4, तो इधर भी नॉर्मल है उधर भी नॉर्मल सर है। हमने एफएस की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके n निकाला है ना? हाँ हाँ, हाँ ओके सर। तो आप अब कैपिटल एफ निकालिए। 3 और 4 को इक्वेट करके क्या आ रहा है बताइए। सर लास्ट वाले स्टेप सर एक बार बता दीजिएगा, वो नहीं समझ में आया, लास्ट का 2 स्टेप सर। यहाँ पर एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन तक क्लियर है? सर उसको भी बता दीजिए, वो देखिए, इस केस में कैसे लिए सर? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं, ये बात बताया था हमने। हाँ ये सर, ये सर। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। ओके, यस सर। म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, वहां पर भी एफ एस है, यहाँ पर भी एफ एस है। तो एफ एस को अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ से इक्वेशन एन की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला। ओके, इफ यू पुट एफ एस इन इक्वेशन नंबर 2 देन द नॉर्मल की इक्वेशन ये आएगी। ठीक है, तो इधर भी नॉर्मल है उधर भी नॉर्मल है, तो 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 3 में क्या है लेफ्ट राइट हैंड साइड में? एम एफ डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और राइट हैंड साइड में क्या है? mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, अब यहां से हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो पूरी चीज को इधर ले जाइए। तो कैपिटल F आ जाएगा हमारा, कैपिटल F आ जाएगा m प्लस m
into into G into क्या आएगा? sin theta plus mu cos theta upon Sin cos theta plus mu cos theta upon mu- cos theta minus mu sin theta upon क्या आएगा इधर? cos theta minus mu sin theta. Okay. So न्यूमरेटर में G भी है. न्यूमरेटर में GB है. Okay. Anything else? Okay. MF ठीक है. यहाँ पर ये स्मॉल m है. हाँ सर ये वाले स्मॉल है भाई. हाँ ठीक है. Okay. So from here we'll get F is equal to M plus M into G into इधर आएगा mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. Okay. So this is the value of F they will get. ठीक है. So this is the maximum value of F up till which the block will not slide up the wedge. इससे ज्यादा लगाएंगे तो फिर slide होना शुरू कर देगा. ठीक है. ओके. अब आप लोग जो है होमवर्क में ट्राई कीजिएगा. होमवर्क में आप ट्राई कीजिएगा. अच्छा मैं आपको देते जा रहा हूं तो साथ साथ में आप होमवर्क करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे हैं? आप ऐसा मत सोचिए कि जब एक साथ सर डिस्कस करेंगे तब एक साथ करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक दिन का टाइम दूंगा, उसके बाद में सारे डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो जितने भी 5-7 10 सवाल रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते जा रहे हैं आप साथ साथ में करते जाइए. ठीक है ना? ओके. Yes, sir. Yes sir. So assignment 2.1 question number 4 42 45 51 52 55 56 58 59 and assignment 2.4 NAT 7. Okay. So these are the questions that you need to do in homework. I think these are related to friction force. Okay. Okay. लिख लीजिए, फिर आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. नोटेड सर. Noted? Yes सर sir. प्रीवियस स्लाइड होमवर्क नोट करना. यार आप लोगों के लिखने का स्पीड काफी स्लो है यार, इसको थोड़ा तेज कीजिए जरा. इसीलिए तो मैंने ब्लैक बोर्ड के 2 बनाए हैं कि इधर से लिखूं फिर उधर जाऊं, जब तक आप इधर का नोट कर लें. यस सर डन. डन सर. Okay. So now we are going to move to the next system, which is spring mass system. Okay. तो इसमें स्प्रिंग के बारे में हम बेसिक्स पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ के रेलेवेंट जो मटेरियल है वो पढ़ेंगे. उसके बाद में स्प्रिंग का हम जो है पूरे कोर्स में कहीं ना कहीं स्प्रिंग आता ही रहेगा. यहाँ पर पढ़ेंगे स्प्रिंग, फिर एनर्जी कंजर्वेशन जब पढ़ेंगे हम वहां पर पढ़ेंगे स्प्रिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम्स में स्प्रिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में एसएचएम पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जीज में पढ़ेंगे स्प्रिंग. तो स्प्रिंग जो है थ्रू आउट द कोर्स आपका चलता जाएगा. ठीक है ना? तो जो भी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक के लिए वो हम स्प्रिंग में पढ़ते जाएंगे. क्लियर बात सबको? ओके. सो स्प्रिंग का बेसिक आपको आइडिया होगा. ठीक है. सो लेट मी टेल यू द बेसिक्स ऑफ स्प्रिंग. ओके. सपोज दिस इज अ स्प्रिंग ऑफ के. ठीक है. के क्या है? के को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट. Constant of spring, spring constant. Spring constant. Okay. And suppose this is block M. And suppose that this is the natural length. Okay. Natural length means it is neither compressed nor elongated. Okay.
It is the natural length of the spring. Okay. So जब natural length होता है, तो what is the force exerted by the spring? क्या होगा? Zero. या Force कांस्टेंट exerted कितना होगा? 0 होगा. Hmm. क्लियर बात सबको? ओके. अब मान लो मैंने ये नेचुरल लेंथ है. अब मान लो मैंने नेचुरल लेंथ से जो है स्लाइटली ब्लॉक को थोड़ा आगे रख दिया है. कितना आगे रख दिया है? x डिस्टेंस आगे रख दिया है. तो इस केस में मतलब क्या हो चुका है? इलोंगेशन हो चुका है. Yes, sir. Yes, sir. तो स्प्रिंग इलोंगेशन हो चुका है और सपोज दिस इज द x डायरेक्शन. स्प्रिंग इलोंगेशन हो चुका है x से. तो नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग. कितना होगा फोर्स? बताइए. X. Minus of फोर्स K. का सबसे पहले बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा? K. kx होगा. Yes. और डायरेक्शन क्या होगा? Negative. Opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन होगा क्योंकि इलोंगेशन हो रहा है. तो व्हाट विल स्प्रिंग डू? स्प्रिंग विल ट्राई टू कम टू इट्स नेचुरल लेंथ. इसीलिए ये ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा. तो यहां पर होगा माइनस, अगर हमने एक्स एक्सिस इधर लिया. बात क्लियर है सबको? और यहां पर एक्स क्या है? इलोंगेशन है ना. ये बात ध्यान रखना है आपको. ओके. नाउ टेल मी, नाउ दिस इज द नेचुरल लेंथ. नाउ So द ब्लॉक this इज is the force exerted by the spring on the block, force exerted by spring on block. which is in the negative direction of the moving of the block. What? सर जो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की, सर हाँ. ये अपोजिट है ना इसके? हाँ, यही इसीलिए तो माइनस है ना ये. हाँ, ओके ओके सर. Okay. So now instead of elongation, there is a suppose compression of x. Okay. In the case of, now this is the compression. Okay. Now tell me, in case of compression, force कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो kx ही होगा, Yes, sir. बट डायरेक्शन क्या होगी? Positive होगा. है ना. कंप्रेस कर दिया हमने मास को, स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग विल ट्राई टू अटेन इट्स नेचुरल लेंथ. इसका Length. मतलब है कि वो ब्लॉक को आगे की पुश करने की कोशिश करेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर फोर्स जो है इसके ऊपर इधर लगेगा और कितना लगेगा? प्लस kx. ओके. सो दीज बेसिक्स यू नो. ओके. Now there is one more thing. What is the potential energy? Potential energy stored in the spring. This we will do in detail in work energy and power. But here, if it requires in some question, then we should know. What is U in spring? Half K. Half K. Half Okay. A x square. है ना. और यहाँ पर x क्या हो सकता है? X can either be compression or also be elongation. Elongation. X can be compression or elongation in the spring. Okay. So these are the basic fundas of the spring. Okay. So based on this, write down one question. Okay. So suppose there is a spring and there's a spring, there is a block of mass 1 kg and the spring constant K is equal to 5 Newton meter inverse. Okay. And there is a force of 10 Newton, force of 10 Newton on this block. So part 1 write down, and initially it is at natural length.
natural length. Okay. So first is calculate acceleration of the block initially. So सबसे इनिशियल पॉइंट पे आपको निकालना है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक. निकालिए आप. क्या होगा जल्दी से बताइए. सबसे पहले ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लिख लीजिए सारे. ओके. तो इनिशियल पॉइंट पे ब्लॉक है हमारा 1 kg का. इधर तो 10 न्यूटन लग रहा है. इनिशियल पॉइंट पे आई मेंशन दैट इट इज एट द नेचुरल लेंथ. तो जब नेचुरल लेंथ पे है तो कोई फोर्स लगता है क्या? हाँ सर. नहीं लगता है. मतलब केवल और केवल 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो लगा दीजिए F बराबर m. F इज इक्वल टू ma. Force is 10 Newton. Mass is 1 kg and A. So from here we'll get A is equal to 10 meters per second square. Okay. इसका बी पार्ट लिखिए आप. जिन लोगों ने नोट डाउन कर लिया है वो. ठीक है. बी पार्ट लिखिए. कैलकुलेट the elongation in the spring when the net force on the block is 0. ठीक है. तो आपको क्या निकालना है कि इलोंगेशन निकालना है जब नेट फोर्स 0 हो. ओके. सो क्या होगा इलोंगेशन. एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए मुझे. 2 meters. ठीक है. तो देखिए इलोंगेशन जब होगा सो दिस इज 1 kg. तो फोर्स तो इधर लग रहा है F. इलोंगेशन होगा तो फोर्स राइट की तरफ लगेगा कि लेफ्ट की तरफ. सर लेफ्ट की तरफ. लेफ्ट की तरफ लगेगा. और उसका वैल्यू कितना होता है. सॉरी ये क्या वैल्यू होता है. kx होता है. यस सर. है ना. तो नेट फोर्स 0 है. इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू क्या है. kx है. तो यहां से x आ जाएगा F बाय k. और F की वैल्यू कितनी है 10 और k की वैल्यू है 5. तो इलोंगेशन कितना होगा 2 meters. सर एलोंगेशन में तो आपने वहाँ माइनस लिखा है, पॉजिटिव कैसे हो जाएगा. अरे माइनस लिखा है इसका मतलब क्या है कि फोर्स इधर लग रहा है ना. वो ओके. मैग्नीट्यूड kx है और फोर्स इधर लग रहा है. ओके सर. तो इसको अगर आप लिखेंगे इस इक्वेशन को तो यहां होगा F नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस kx इज इक्वल टू 0. तो यहां से आएगा F इज इक्वल टू kx. लिख लिया सब. नहीं है. Yes sir. सर एक डाउट है यस. सर. अभी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कैलकुलेट एक्सेलरेशन में सर, हाँ. हमने उसमें अगर हम किसी भी एक ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन तो सर उसमें तो इलोंगेशन होगा ना अगर वो स्प्रिंग से अटैच है तो. सर नो उसमें बट क्या मतलब स्टेटमेंट थी. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं. इस पॉइंट पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है. ओके. वो तो बाद में आगे बढ़ेगा ना तब लगाएगा ना फोर्स. तो इस पॉइंट पे तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा स्प्रिंग. अच्छा. ओके. और सर नीचे वाले की एक बार स्टेटमेंट बोल दीजिए सर. क्वेश्चन में क्या था. थोड़ा नीचे वाले का confusion issue था. स्टेटमेंट ये था कि नीचे वाले का स्टेटमेंट ये था कि कैलकुलेट द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग व्हेन नेट फोर्स इज 0. ओके सर. लिख लिया सब लोगों ने ये. यस सर. Yes sir. Okay. Yes, sir. Now
try out question number assignment 2.1 question number 10. Okay, so just 1 minute. Question number 10, what is it? Okay. Yeah, क्वेश्चन नंबर 10 से ट्राई कीजिए असाइनमेंट 2.1 का. ऑप्शन ए होगा सर। हो गया? यस सर। ठीक है, तो इसमें जो है दिया हुआ है कि स्प्रिंग है K, मास जो है M है, ठीक है, और इनिशियली सपोज दिस इज नेचुरल, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 है इनिशियली, और फोर्स जो है F लग रहा है. This constant is given as K. So we need to find what is the velocity at which what is the velocity speed of the block at which the net acceleration is 0, or net, what is the speed of the block at which net acceleration is 0. So यहाँ पर हमसे स्पीड पूछा है, ठीक है. तो सपोज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ब्लॉक जो है यहाँ पे आ गया, x डिस्टेंस पे आ गया किसी पॉइंट पे, ठीक है. ओके, तो नाउ टेल मी, इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा? एक तो F तो लग ही रहा है, यस सर। and the spring will also apply the force Kx. Okay. Okay. Now, so there is mass M. Here it is F. Here it is Kx. Okay. So now tell me, what is the force equation? This is Kx. Suppose this is acceleration A. Okay. So F बराबर ma अगर हम लिखते हैं, so from here what will be F? Capital F minus Kx is equal to m into A. ठीक है. अब मुझे बताइए यहां से कि A जब 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? तो A जब 0 होगा तो F माइनस K, सपोज x0 पे 0 हो रहा है, इज इक्वल टू 0. तो x0 की वैल्यू क्या होगी? F बाई क्या होगी? है ना, उस समय एक्सेलरेशन जो है 0 होगा. ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन जब 0 होगा मतलब x इज इक्वल टू x0 होगा, उस समय हमें स्पीड पता करना है. ठीक है, तो बताइए मुझे, यहां से हमें एक्सेलरेशन और x का रिलेशन दिया है, तो हम ये कर सकते हैं F माइनस के एक्स इज इक्वल टू m इंटू A को हम स्पीड के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? dv by dx. dv by dx लिख सकते हैं. Yeah, Huh? X correct. Yep. Yes, sir. Right? So from here we'll get m into v dv is equal to f minus kx into dx. Okay. Initially velocity 0 है, यहां से v तक जा रहा है. Initially x 0 है और कहां तक जा रहा है? x0 तक.
जहां पर नेट एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर बात सबको? सो फ्रॉम हियर विल गेट m into v square by 2 is equal to, from here we'll get, from the first term, what will we get? F into x. x The limit is from 0 to x naught. From the second term, what will we get? K. What will be the limits? 0 to x naught. Okay. So from here, mv square over 2 is equal to f into, what is the value of x naught? F by k. F by k minus k by 2 into f by k ka square. Okay. So from here we'll get mv square by 2 is equal to, here it is f square by k, here it is f square by 2k. So f square by 2k. So from here we'll get v is equal to f by under root of f square by k. Okay. Under root of f square by mk. Okay. So when the acceleration is 0, at this point, the speed will be under root of f square by mk. Now, जिनका हो चुका है, now they try, इसी का क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए, जिनका हो चुका है। सर हाँ बोलिए। सर एक्स नॉट यहाँ पे मतलब वो पोजीशन है जहाँ पे मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया है ना? बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. और सर एक्स मतलब हम लोग का मतलब कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन है? हाँ हाँ, एक एक्स जो है attaining हमने कोई आर्बिट्री पोजीशन ली है और यहाँ से एक्स नॉट निकाला है जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि किस वैल्यू ऑफ, मतलब जिस Velocity. एक्स नॉट पे एक्सेलरेशन 0 है वहां पर स्पीड क्या है। यस ओके। इसी सवाल को हम वर्क एनर्जी पावर में करेंगे तो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, है ना? उसको फिर हम कैसे करेंगे कि फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनको आपस में रिलेशन करके कर सकते हैं। ठीक है, बट हियर जस्ट डूइंग फ्रॉम न्यूटन्स लॉ एंड काइनेमेटिक्स। 11 ट्राई कर लीजिए सब लोग। ठीक है, तो अगर यहां से मुझे किसी जनरल एक्स पे निकालना हो vx तो क्या हो? कल नोट डाउन कर लिया सबने? Yes, sir. yes sir ओके। अब असाइनमेंट 2.1 का इसी का 11। सो फ्रॉम द प्रीवियस अगर हम देखें mvx, अगर किसी एक जनरल पॉइंट पे देखें तो 0 से v mv dv इज इक्वल टू 0 से x f माइनस kx इंटू dx। So from here we'll get mv square by 2 is equal to fx minus kx square by 2। So किसी जनरल x पे जो है ये है, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। नाउ टेल मी, ये क्रूशियल पॉइंट है, मैक्सिमम इलोंगेशन जब होगा तब पार्टिकल यहां पर कहीं पे होगा
तो मैक्सिमम इलोंगेशन जब होगा जब पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? Zero. जीरो जीरो होगी कि नहीं होगी? स्ट्रीम पोजीशन पर 0। समझ गए बात आप? क्योंकि Yes, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ और है, तो कुछ और आगे बढ़ जाएगा। वो कहां तक आगे बढ़ेगा? जहां तक जीरो नहीं होती। समझ के बात आप ये लोग? यस सर। है ना? तो मैक्सिमम इलोंगेशन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मैक्सिमम इलोंगेशन जब होगा उस समय वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, स्पीड जो है जीरो हो जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी का जो है हमने लास्ट क्वेश्चन से ये दे रखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी को जीरो करेंगे तो यहां से हो जाएगा fx माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0, फ्रॉम विच x इज इक्वल टू 2f बाय k। ठीक है, तो इस इलोंगेशन पे जो है वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी। अब एक बात नोटिस कीजिए, एक्सीलरेशन जीरो कब हो रहा था? f बाय k पे, Yes, sir. लेकिन वेलोसिटी कब जीरो हो रही है? 2f बाय k, 2f by k। है ना? समझ गए बात सब लोग? Yes, sir. मतलब कि क्या होगा? मतलब कि ये होगा कि ये स्प्रिंग है, मान लो उससे मास कनेक्टेड है और ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो इनिशियली इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, इधर तो इनिशियली जीरो लग रहा है। यस समझ गए बात? सपोज दिस इज नेचुरल लेंथ, अब ये आगे चलेगा तो फोर्स तो वही का वही लग रहा है, बट ये स्प्रिंग क्या करेगा? इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बट Yes. ये फोर्स डोमिनेट करेगा क्योंकि फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो कहां तक ज्यादा होगा? ये होगा F बाय के तक चलेगा, तब तक ज्यादा होगा, है ना? तो F बाय के तक चलेगा। यहां पर एक्सेलरेशन, यहां पर कितना? F इधर लगेगा और यहां पर लगेगा F इज इक्वल टू के एक्स, और x क्या है? F बाय के, तो F इज इक्वल टू यहां पर भी F ही होगा। समझ गए बात? अब के एक्स इज इक्वल टू, यस सर। है ना? तो इस पॉइंट पे जो है फोर्स इधर भी F लगेगा, इधर भी F लगेगा। तो अगर फोर्स बराबर है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। जीरो होगा। Zero. बट एक्सीलरेशन तो जीरो है, बट जहां पर एक्सीलरेशन जीरो है वहां पर वेलोसिटी जीरो है क्या? No, sir. No, sir. नहीं है। इसका मतलब है कि नेट फोर्स तो जीरो है, बट पार्टिकल अभी भी आगे चल रहा है v से। समझ गए बात? इसका मतलब क्या है कि और उसको आगे खींचेगा, और कहां तक खींचेगा? 2f बाय k तक, और फिर यहां पे जाके जो है वेलोसिटी जीरो होगी। पिक्चर क्लियर हो रही सबको? यहां से हमने शुरू किया, यहां पर नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ जो है, नेचुरल लेंथ पे ही स्प्रिंग, और इलोंगेशन है, कंप्रेशन जीरो है। इसका मतलब है कि राइट में तो फोर्स F लग रहा है, लेफ्ट में कोई नहीं लग रहा है स्प्रिंग का। उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे आगे जाएगा स्प्रिंग का फोर्स बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इधर F होगा और स्प्रिंग भी जो है के एक्स इज इक्वल टू F लगा देगा, और वो किस एक्स पे लगाएगा? F बाय के पे। तो यहाँ पर जो है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन तो जीरो होगा, बट हमने कैलकुलेट किया था कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी नॉन जीरो होगी क्योंकि आगे चल रहा है वो। अब वेलोसिटी नॉन जीरो होगी तो ये इसको आगे ले जाएगा, फिर आगे किस पॉइंट तक ले जाएगा? यहाँ पर 2f बाय के तक, जहां पर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। और ये जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम इलोंगेशन। दिस इज मैक्सिमम इलोंगेशन। ओके, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सर सर इस Yes. पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन जब 0 हो जाता है उस पॉइंट के बाद तो सर वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू, you're right। तो क्योंकि फिर तो क्योंकि तब जो है नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो सर क्योंकि हाँ, बोलिए। डोमिनेट तब भी वो वाला फोर्स करेगा जो हम पुलिंग फोर्स है उसकी। नहीं, इसकी वहां पे वेलोसिटी v है ना। अब ये v Yes, sir. v इधर है और एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, तो वेलोसिटी कम होते 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 फिर इधर यहाँ पे जीरो होगी। सर ये मैथमेटिकल तो समझ में आ गया, बट हाँ। थोड़ा सा ना फिजिकली समझ नहीं आ रहा कि मतलब उसके बाद भी वो आगे मूव करेगा। And then अरे फिर तो आगे मूव क्यों करेगा? क्योंकि वेलोसिटी है ना उसके पास अभी भी।
समझ के हाँ बाद सर वेलोसिटी है अभी उसके पास, बट ये स्प्रिंग जो है अब उसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है, और स्प्रिंग पीछे खींचेगा तो कम होता जाएगा, और एक लिमिट के बाद में वेलोसिटी 0 होगी। लिख लिया सब लोगों ने ये? सर यस। हाँ, तो जो एफ बाय के पोजीशन जो आगे बढ़ रहा है वो इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ रहा है क्या एफ बाई के पोजीशन आगे बढ़ेगी वो? ना? एफ बाय के पोजीशन पे ए 0 हो जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, उस पोजीशन से जो आगे बढ़ रहा है वो इनर्शिया की वजह से। बिल्कुल सही कह रहा है, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि मोशन के पास अभी भी बॉडी के पास फोर्स तो 0 है, लेकिन बॉडी के पास अभी भी वो है, कुछ वेलोसिटी है, इनर्शिया है, तो वो आगे जाने की कोशिश करेगा। हाँ, तो आप जो कह रहे थे वेलोसिटी घटते जाएगी तो एक डी एक्सेलरेशन भी होगी ना? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी क्यों घटते जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो स्प्रिंग का फोर्स एफ के बराबर है। अब उसके बाद में और आगे जाएगी तो स्प्रिंग का फोर्स एफ से ज्यादा हो जाएगा ना। तो हम ए वहां से माइनस में ले सकते हैं ना, तो ये 0 क्यों ले पॉइंट? नहीं, ए एग्जैक्टली इस पॉइंट पे तो 0 होगा ना, उसके बाद में माइनस होता जाएगा ए। ओह हाँ ठीक सर। ओके, जिन लोगों ने कर लिया है नाउ दे कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 इसी का 24 क्वेश्चन नंबर द 2 masses 10 and 20 kg। ओके, सो इसी का मतलब 2.1 का 24 ट्राई कीजिए आप। Okay, and after that we will move to one more concept in spring and string. Guys, let me announce that in the next week, maybe on Saturday or Sunday, that is on 24th or 25th, there will be test. Okay, hello. Okay, ओके sir. सर Yes. ओके सर Okay, and the test will be kinematics plus Newton's law. ठीक है, Okay, sir. तो इसीलिए उसको अच्छे से अब होमवर्क प्रॉब्लम सारे कीजिए, क्योंकि जनरली क्या हुआ है कि जो ऑफलाइन बैच ले रहा हूं मैं, उस बैच में जो है टेस्ट नेक्स्ट वीक है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने अभी तक किया नहीं सर, थोड़ा बढ़ा दो, तो आपके साथ वो सिचुएशन ना आए, इसीलिए आप अभी से अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है ना। कैनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ में हम जो भी प्रॉब्लम्स देते जा रहे हैं 5, 7, 10 डेली, उनको आप रेगुलर ट्राई कीजिए। ओके, ताकि लास्ट मोमेंट पे अभी आपका और कोई टेस्ट है क्या इस बीच? नहीं सर, अभी लास्ट व्हेन वाज योर लास्ट टेस्ट? today टुडे? was the last. Yeah. व्हिच टॉपिक? EMT. EMT. Okay, okay, okay. क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई कर लिया सबने? Yes. Okay, so in the question number 24, assignment 2.1, question number 24, what are the masses? 10 kg and 20 10 kg and 20 kg. 20 kg. Okay, and what is the spring constant? Yeah. 200 What? 200 spring constant नहीं दिया है सर। दिया was Okay, no problem, spring constant is not given. जरूरत नहीं है। There is force is applied is how much? 200. 200 Newton. Okay, and we have to find what? A1 and A2. Sir, A1 given है. A1 is given 12 meter per second square. Okay, A1 is given as what? 12 meter per second square. 12. Okay, and we have to find A2. Okay, so now tell me, Yes, sir. this is 10 kg,
This acceleration is 12. Okay. So what will be the force applied on 10 kg? It will be on the right or left? Right? Right. Force by spring. Okay. So if you write F barabar ma, Newton's law. So from here we'll get F spring is equal to mass is 10 kg and acceleration is 12. So from here, how much F spring will get? 120. Okay. So the force applied by the spring is 120 Newton. Now it is 20 Newton mass. Okay. On the right side, the applied force is 200 Newton. Okay. On the right, on the block 20 kg, in which direction the spring will apply the force? Left or right? Left. On the left side. Left. And what is the value? 120. Okay. Yes, sir. Yes, So sir. from here we'll get 200. So from here also F is equal to ma. It is going by A2. So 200 minus 120 is equal to mass is given as 20 and A2. So from here we'll get A2 is equal to 80 divided by 20. So it will be 4 meters per second square. Okay. So there is one important concept which you can write if you don't know. See here, the spring is applying 120 Newton here. Okay. So here the spring is applying 120 Newton. And here also it is 120 Newton. Why is it so? Due to massless. Massless है sir. वो. Massless. Okay. So write down this point. If the spring is massless, then force on both the ends will be same. Will be same in magnitude. But opposite in direction. Okay. Write down this, then we will move to the next concept. ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं. नहीं सेम एक्सेलरेशन से क्यों चलेंगे? फोर्स, दोनों का फोर्स सेम है, एक्सेलरेशन सेम थोड़ी है. दोनों के ऊपर स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स सेम है. राइट डाउन कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, Just 1 minute. Yes. sir, can we say that spring force also has a pulling effect just like tension? It has a pulling effect, but in the case of string, the length of the string was fixed. Here it can change. Yes, sir. Okay. But here, and spring, how spring is different from string? First difference is that the string of length is constant, but spring can change. Yes, sir, Second it is can that be only. string can only have a pulling effect, but spring can also have the compressing effect, pushing effect. Understood? Yes, sir. अगर हमने Yes, sir. मान लो स्प्रिंग को पुश कर दिया, तो वो ब्लॉक के ऊपर फिर पुश वाला लगाएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. जब कंप्रेशन होगा तब पुश होगा, जब इलोंगेशन होगा तब पुल होगा. Okay. So same string have same tension everywhere. Same spring have
same tension everywhere. हाँ, but if it is massless. Okay sir. Okay, now tell me one thing. अब एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर. Suppose this is a string and this is mass m. ठीक है. अब बताइए टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? इसके ऊपर नीचे mg लग रहा है तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी बताइए जल्दी से. mg mg होगी. mg. ठीक है. ओके, अब मान लो मैंने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, सडनली कट कर दिया. ठीक है, ऊपर से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया. तो अब बताइए स्ट्रिंग की टेंशन कितना होगा? आप Zero. जीरो हो जाएगा, है ना, सडनली कट करने के बाद. और इधर मास m है और इधर एक्सेलरेशन फोर्स जो है mg लग रहा है. तो एक्सेलरेशन फिर क्या होगा इसका? कट करने के जस्ट बाद क्या होगा? A is equal to net force is mg, mass is m. It is g. Okay, so this point is clear सबको? Yes, sir. Okay, अब तो इसको अगर एक क्वेश्चन के रूप में ट्राई करते हैं हम, या फिर एक कॉन्सेप्ट अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि when a string is suddenly cut, then its tension becomes 0. Okay, so t की वैल्यू जो है 0 हो जाती है. Okay, now एक क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन ये है कि there is this spring, then there is this mass 2m and tension T. Okay, so यहां पर देखिए ऊपर जो है स्प्रिंग है और नीचे जो है स्ट्रिंग है. ठीक है, और इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है ना, पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है. सो पार्ट ए लिखिए, कैलकुलेट tension in the string and force applied by the spring. So suppose this tension is T और ये force जो है अप्लाई, स्प्रिंग जो है Fs लग रहा है, तो आपको T और Fs निकालना है. निकालिए T और Fs सब लोग, और जो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है. FS 3mg. सबसे पहले Fs कितना आएगा बताइए मुझे? 3mg. और T कितना आएगा? T तो सर mg होगा. सब लोग निकालिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए सब लोग. एक बात बताइए मुझे सर, ये जो आपकी जो ऑनलाइन बैच है उसमें हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर? अभी तो सर 88. अच्छा, नहीं अभी नहीं, मैं पूरा ओवरऑल कितने हैं टोटल? कुछ तो क्लासेस बाद में लेते हैं. 150 के करीब. 150 राइट? हाँ, Yes. 150 के. Okay, but in the Telegram group there are 200 students. How come that possible? कुछ लोग अपने 2 अकाउंट से भी होंगे. In the Telegram group there are 200 students. Maybe people are using other accounts too. Okay, so like for example, ऑफलाइन बच्चे भी हैं okay, ऑफलाइन बच्चे. शायद ऐसा कुछ कोई मैसेज कर रहा था कि फ्रेंड को ऐड करने के लिए ऐसे कुछ.
Okay. Or is it like that one student has 2 or more accounts? हाँ सर ऐसे भी होता है। So that's also possible. Okay, okay. Okay, Atmik, spring force is 3 mg, tension is mg. Ankit, spring is EMG. What is EMG? सबने निकाल लिया है? T और FS सब निकालो, क्या होगा? और कमेंट सेक्शन में लिखो एक बार। और इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। This is a simple question, यार. You should do it. Deep, Ashish, Ajit, Sujata. Okay. Okay. So see, system is in equilibrium. That means each body is at rest. Okay. So now this consider body of mass m. So if you consider the body of mass m, so what are the forces acting on this body? Tell me forces. Tension and weight. Gravity, mg. Mg and tension. टेंशन Okay. And it is in equilibrium. That means net force कितना हो जाएगा इसके ऊपर? 0 हो जाएगा. So from here we'll get T minus mg is equal to 0. T is equal to mg. Okay. So T is equal to mg. Now consider the block 2m. On the 2m, what are the forces which are active? Tell me. क्या होगा? सर टेंशन टेंशन किधर लगेगा इसके ऊपर बताइए जल्दी से. नीचे, टेंशन नीचे लगेगा. और बताइए क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा. 2m into g. ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे. नीचे लगेगा। कितना? 2mg. और इसके ऊपर भी F net 0 हो जाएगा. यस सर, F net 0 होगा तो यहाँ से Fs क्या हो जाएगा? T plus 2mg. T हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं mg. तो Fs is equal to 3 mg. ओके. इतना टाइम क्यों लग रहा था मुझे बताइए सबको? हैं? ठीक, सबने कैलकुलेट कर लिया था? कर लिया था किया था तो मैं पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो आप बोले क्यों नहीं फिर? ओके. अब इसी में अगला पार्ट लिखिए. अच्छा, डू यू गाइस नो हाउ टू कॉपी दिस थिंग? कैसे करते हैं कॉपी? सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं इसको? ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसमें आप अगला प्रॉब्लम लिखिए आप. This was part A. Now write down part B. Part B लिखिए. If the string is cut suddenly, calculate the acceleration of both the blocks,
the blocks just after cutting. Just after cutting. बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में। दोनों का अलग अलग बताइए मुझे क्या होगा। 2 kg वाले का क्या होगा और 1 kg वाले का क्या होगा, मतलब 2 mg वाले का क्या होगा और mg वाले का क्या होगा। सचिन बोल रहे हैं जी अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो जी अपवर्ड्स किसका होगा सचिन और डाउनवर्ड्स किसका होगा? 2m वाले का अपवर्ड होगा सर। ओके जी शिवम बोल रहे हैं जी डाउनवर्ड्स फॉर mg एंड g/2 अपवर्ड्स फॉर 2 mg। ओके g/2 जी बोल रहे हैं। दीप जी दोनों ऊपर है कि नीचे है दीप? डायरेक्शन के साथ दीजिए सब आंसर। सर एक इसमें कंफ्यूजन है सर। हाँ बोलिए। जो स्ट्रिंग को काटा जा रहा है हाँ वो मैं होंगे सर, मतलब कि ये जो सेकेंड स्ट्रिंग काटा जाएगा या फर्स्ट को? स्ट्रिंग नहीं है, ऊपर वाला तो स्प्रिंग है सर। अजीत जी क्या बोल रहे हैं आप? यस समय वही मतलब कंफ्यूजन था। नहीं नीचे वाला स्ट्रिंग है, ऊपर वाला स्प्रिंग है। तो स्ट्रिंग कट रहा है या इस सॉरी देख लेते हैं, स्ट्रिंग कट। हाँ मैंने स्ट्रिंग लिखा है ना क्वेश्चन में। सचिन जी ने पहले बोला कि जी अप और डाउन, फिर बाद में बोल रहा है शिवम इज करेक्ट, मतलब जी और g/2। हाँ सर वो 2m है ना सर, तो डिवाइड नहीं कर रहा उससे। ओके गाइस, तो सी हमने स्प्रिंग को जो है स्ट्रिंग को कट कर दिया है। ठीक है, स्ट्रिंग को कट कर दिया है। तो स्ट्रिंग को कट कर दिया है हमने, तो मास m के ऊपर अब कोई टेंशन रहेगा ऊपर? नो सर। नहीं कृष्ण रहेगा। जी। केवल और केवल क्या रहेगा, नीचे mg रहेगा, जी है ना। सपोज इधर am है तो लगा दीजिए F इज इक्वल टू m है। तो F है mg, मास m एंड am। So A of m is equal to g downwards. अब 2m की बात करते हैं। तो 2m पे देखिए, जब स्ट्रिंग को कट किया है हमने तो टेंशन फोर्स अब कुछ रहेगा 2m पे? नो सर। नहीं रहेगा। केवल और केवल क्या रहेगा, स्प्रिंग है ना। अब देखिए जैसे ही हमने सडनली कट किया, उस मोमेंट पे जो है स्प्रिंग में कुछ चेंज होगा, इलोंगेशन में सेम का सेम रहेगा इलोंगेशन। यस सर। मतलब Fs जो पहले था वही बाद में रहेगा, यस सर। है ना। सर। तो Fs है, अब टेंशन तो 0 हो गया, बाद में इधर 2mg लग रहा है ना। तो Fs की वैल्यू कितना था, 3mg। तो ऊपर 3mg है, नीचे 2mg है, तो ऊपर एक्सेलरेशन होगा इसका a 2m। लगा दीजिए F बराबर m है ना। फोर्स कितना है, 3mg ऊपर माइनस 2mg नीचे इज इक्वल टू मास क्या है यहाँ पर 2m into a 2m। So from here we'll get a 2m is equal to 3mg minus 2mg, which is mg by 2m. So mg by 2m means g by 2, or direction is upwards. Okay. Yes, sir.
Now try question. Just 1 minute. Assignment 2.1. Assignment 2.1. Try question number 6. So here there are 3 masses. One is 10 kg, one is 20 kg, and there is third mass which is again 10 kg. इसको ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं. So the question is asking that 3 balls of mass 10 kg, 20 kg and 10 kg are hanging by massless string and are connected by springs. तो देखिए ऊपर जो 10 kg वाला है ना, जो ऊपर सीलिंग से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बाकी फिर 2 स्प्रिंग है. ठीक है, समझ गए बात? जो टॉप स्ट्रिंग है, बाकी नीचे 2 स्प्रिंग है. Initially the system is in equilibrium and all the objects are at rest. अब ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है काट दी गई, तो what is the acceleration of the topmost ball at the instant of time? Okay, ये JNU 2015 में पूछा गया था. जिनका हो जाए वो आंसर लिखते जाइए. थ्री जी होगा सर. ऊपर वाले मास का कितना वो होगा? थ्री जी आ रहा है रितेश का, 4G आ रहा है दिग्विजय का. ओके, शिवम 4G, आशिफ, सचिन, अमृतेश, मिनाल, परेशा, पिंकी. ओके, 4G. ग्रेट. सो यहां पर जो है the question it is given that initially this is assignment 2.1 question number 6. Okay, so it is in ceiling, there is a string, from the string there is mass 10 kg. Okay, then from it there is a spring, and from a spring there is mass 20 kg, and from this there is another spring which is mass 10 kg. Okay, and suppose this is 3, 2, 1. Spring number, mass number 1, 2 and 3. Okay. Okay. So now we have to find इस string को जो है cut कर दिया. Okay. So initially it was all in equilibrium. Okay. So ये जो है F, ये 1 mass number 1, mass number 2, mass number 3. Suppose this is this force applied by this spring is F12 and this F23, F23, F12, and here it is tension T. Okay. So now tell me, consider block number 3. Consider mass 3. So mass 3 जो है हमारा, it is 10 kg. what? 10 kg. Okay, it is mass 10 kg. इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं मास 3 के ऊपर?
बताइए. One is the 20 kg and 10 one kg. is 10 tension force. Yes, sir. Another is FS23, And F23, yes, sir. and its own mass, which is mg कितना हो जाएगा 100 Newton. Okay. So from here we will get T is equal to F23 plus 100. Okay. So now consider all three masses. ठीक है. तो अगर मैंने मान लो ये तीनों मासेस को जो है 10 kg, this, इन तीनों मासेस को मैंने एक सिस्टम ले लिया पूरा, है ना, पूरा एक सिस्टम है. तो इस पूरे सिस्टम पे बताइए मुझे, दिस इज इस पूरे सिस्टम पे बताइए कितने फोर्स लगेगा टोटल. नीचे में सर लगेगा 40. ऊपर तो टेंशन लगेगा यस सर. और नीचे क्या लगेगा, 40 जी. नीचे ग्रेविटी लगेगा. तो ग्रेविटी क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g. m1 is what, 10 kg, 10 kg. m2 is what, 20, m3 is 10, so it is 40 g. That means it is 400 Newton. Okay, so total ऊपर जो है टेंशन लग रहा है, नीचे लग रहा है 400 न्यूटन. That means अगर मास जो है, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 होगा. T यहां से क्या आ जाएगा, 400 न्यूटन. ओके. नाउ अब स्ट्रिंग को ऊपर वाले को सडनली कट कर देगा. तो जस्ट आफ्टर कट, अब मास 3 को देखिए क्या होगा, मास 3 को देखिए क्या होगा 10 kg वाले को. अब ऊपर कोई टेंशन रहेगा, नहीं रहेगा. अब नीचे केवल क्या रहेगा, एक तो mg रहेगा जो कि 100 न्यूटन है खुद का मास, और क्या रहेगा, F23 भी रहेगा. क्लियर है सबको, ऊपर का टेंशन बस खत्म हो गया है. इस डायग्राम से केवल टेंशन हमने उड़ा दिया है. नीचे F23 भी लग रहा है और 100 भी लग रहा है. ठीक है, तो सारा फोर्सेस नीचे लग रहा है, तो इधर एक्सेलरेशन A होगा. लगा दीजिए F बराबर है में. ठीक है, सो अब F इज इक्वल टू क्या है, F23 है प्लस 100 इज इक्वल टू m इंटू A. और m की वैल्यू भी हम देख ले हैं, m है 10 इंटू A. ओके, अब बताइए मुझे यहां पर टेंशन कितना है, F23 प्लस 100, टेंशन निकला है 400, तो यहां से F23 कितना आ जाएगा, T माइनस 100. सो F23 आ जाएगा 400 माइनस 100. F23 कितना आ जाएगा, 300. ठीक है, 300 न्यूटन है, तो यहां लिख दीजिए 300 प्लस 100 is equal to 10 into A. So from here A will be 40. ठीक है, 40 meters per second square downwards. इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप, है ना, एक एक करके ये निकाले फिर ये निकालिए, या सिस्टम लेके, है ना, आप अपने तरीके से कर सकते हैं. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किए होंगे, काफियों ने, ना. सर यस, ओके. होमवर्क मैं आपको दे चुका हूं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट.
लिख लिया सबने? Yes. Yes. Okay. Now let's move to the next concept. Okay. Now this is very important concept which we are going to learn. Okay. So we have already done. Okay. So this is dynamics in circular motion. या फिर इन जनरल प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्लेन पोलर. Okay. So now just recall the kinematics part of plane polar and circular motion is already done. Understand? Yes. है ना? तो किनेमेटिक्स पार्ट के आपको फॉर्मूलेस पता है? बता सकते हैं मुझे आप लोग? ठीक है. Yes, sir. बताइए क्या होगा. सबसे पहले तो मुझे बताइए कि प्लेन पोलर की बात कर लेते हैं एक बार. प्लेन पोलर का चेक करते हैं आपको पता है कि नहीं. प्लेन पोलर में बताइए वेलोसिटी क्या होगा? R R cap plus R theta dot theta. वेलोसिटी क्या होगा? आर कैप होगा एक और एक थीटा कैप होगा. आर कैप डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या था? R R cap plus R theta dot sir. आर डॉट था. थीटा कैप का क्या था? थीटा डॉट. Okay. So this was VR and this was V theta. VR क्या था? Radial component Yes, sir. and V theta was Tangential. transverse component. Okay. अब बताइए A क्या था? A के भी दो कंपोनेंट थे, R और थीटा. R double dots minus R theta dot is AR और A थीटा. AR क्या था? जल्दी से बताइए मुझे. R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर. R डबल डॉट था. फिर क्या था आगे? माइनस माइनस था. बिल्कुल सही बात है. R क्या थीटा था? डॉट स्क्वायर. R थीटा डॉट square. A थीटा क्या था बताइए मुझे. R dot theta dot plus R theta dot R डॉट थीटा डॉट फिर क्या था? प्लस R theta double dot. इसका एक और फॉर्म बताइए सर मुझे क्या था? 1 by R d by dt R square. R square theta dot. 1 by R d by dt of R square theta dot. बिल्कुल सही है. ठीक है. ओके. सो दिस वाज प्लेन पोलर. अब जो सर्कुलर था हमारा, अच्छा एक और बात यहां पर थीटा डॉट को ओमेगा भी लिख सकते थे ना? है ना? तो जहां भी थीटा डॉट है वहां पे ओमेगा भी लिख सकते थे. ओके. सो सर्कुलर की बात कीजिए. सर्कुलर क्या था? इट वाज जस्ट द स्पेशल केस ऑफ प्लेन पोलर. समझ गए बात? रेडियल कंपोनेंट जिसमें कि सर्कुलर में क्या हुआ? आर क्या था? फिक्स था, है ना? आर कांस्टेंट है. रेडियस मतलब कि कांस्टेंट है. रेडियस कांस्टेंट है बताइए तो आर डॉट क्या होगा? 0 होगा. आर डॉट 0 है और आर डबल डॉट भी क्या होगा? 0 है. मतलब यहां पर V क्या होगा? केवल आर थीटा डॉट थीटा क्या. ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V को और आर थीटा डॉट इज आर ओमेगा थीटा डॉट, है ना? और आर ओमेगा क्या होता है? स्पीड. ठीक है. ये सब एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं. थीटा डॉट को ओमेगा लिखेंगे और ओमेगा आर जो होता है वो स्पीड होता है. ठीक है. ओके. नाउ टेल मी अबाउट this thing, acceleration. एक्सीलरेशन की बात अगर की जाए हमें तो AR क्या होगा बताइए?
ए आर सेम होगा, बट यहाँ पर आर डबल डॉट तो जीरो हो जाएगा. ओके, सो ओनली थिंग विच रिमेन्स इज माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर. ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अच्छा, और ओमेगा क्या होता है? वी बाय आर, है ना, सर्कुलर मोशन में, है ना. वी और ओमेगा बराबर है. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए आर को माइनस वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, अब बताइए मुझे कि ये जो एक्सिलरेशन है ना, सेंट्री सॉरी, ये रेडियल जो एक्सेलरेशन है, इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है, देखिए, अब एक सर्कल में मान लो सपोज एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से हम पत्थर को घुमा रहे हैं स्ट्रिंग से. ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, वो टेंशन पत्थर को घुमाएगा. ठीक है, तो बताइए इस सर्कुलर मोशन में जो टेंशन फोर्स है वो स्ट्रिंग की स्पीड को चेंज करने का काम करता है, डायरेक्शन को, वेलोसिटी की डायरेक्शन को. टेंशन फोर्स जो है वो स्पीड को थोड़ी चेंज कर पाता है, डायरेक्शन को ही चेंज करता है ना, है ना. तो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन of velocity. लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे. ये इसके तीन फॉर्म है. ठीक है ना, जिस प्रॉब्लम में जो लगेगा, अगर थीटा डॉट के टर्म्स में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, ओमेगा ये है, स्पीड दिया है तो वी स्क्वायर बाय आर. ओके, लिख लिया सब लोगों ने? यस सर. ये सब चीजें हम कर चुके हैं, दिस इज जस्ट रिवीजन. तो रेडियल एक्सेलरेशन की बात हो गई. अब ए थीटा क्या होगा? ए थीटा तो था आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट. तो आर डॉट तो जीरो है, तो बचेगा सिर्फ क्या? आर थीटा डबल डॉट. अच्छा, ए थीटा का एक और वो था, क्या था? ए थीटा का एक और था क्या? 1 बाय आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट. आर स्क्वायर थीटा डॉट. अब आर तो कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में, यस सर. तो आर को बाहर निकाल सकते हैं. यस सर. तो क्या होगा? आर इंटू बाहर निकाल सकते हैं, फिर अंदर ले जा सकते हैं आर को. तो ये होगा डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू थीटा डॉट इज ओमेगा, है ना. तो ए थीटा इज डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा इंटू आर. क्या है? स्पीड है ना. तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी हो गया. ठीक है, तो दिस इज, अब बताइए ए थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग व्हाट? स्पीड, है ना, dv by dt. So this is responsible for changing the speed. Speed मतलब क्या होता है? Magnitude of velocity. Of the particle. ठीक है,
ओके, और ए थीटा को क्या था? दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, सो जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है it is responsible for changing the magnitude of velocity. Okay. अब न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं अगर सर्कुलर मोशन में, तो सीधी सी बस एक सिंपल सी बात है, एक लाइन का है और कुछ नहीं है, बाकी सब काइनेमेटिक्स है। मैंने आपको पहली क्लास में बोला था न्यूटन्स लॉ की, इट इज जस्ट वन लाइन फोर्स, रेस्ट ऑफ द स्टफ इज ओनली किनेमेटिक्स। ओके, सो इन द न्यूटन्स लॉ there is some force, so Fr is equal to m into Ar, and F theta is equal to m into A theta. That's it. This is the extra stuff that we have learned. Otherwise, you all know everything about circular motion. But इसी में जो है अलग अलग डायनेमिक्स में हम अब प्रॉब्लम्स देखेंगे। लिख लीजिए सब, फिर आगे चलते हैं। अब सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स की प्रॉब्लम्स देखेंगे। Sir, I have a doubt. Done everybody? Yes, sir. Sir. Just 1 minute. Yes. Someone is asking something. Yes, sir. Sir, I have a doubt, sir. Okay. Sir, AR जो है सर रेडियल कंपोनेंट, सर उसमें सर ये कैसे पता चला कि ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा है, चेंज होगी इसमें? देखिए, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर जो होता है डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है। यस सर। समझ के बात आप ये? और वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज एक्सीलरेशन होता है। तो वेलोसिटी जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। समझ गए बात? यस सर। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन सा एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है? ए थीटा। ए थीटा क्या है? डी बाई डी टी ऑफ स्पीड है ना, ओमेगा आर। और स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज द रिमेनिंग एक्सेलरेशन? ए आर। वो क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन को चेंज करेगा। समझ गए बात आप लोग? Yes, sir. ओके, लिख लिया सब? नहीं है? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन में ट्राई करके मुझे बताइए जल्दी से। So there is a particle which is doing a circular motion. Okay. This radius is r is equal to 1 meter दिया हुआ है। पार्टिकल जो है उसके ऊपर it is going with speed v is equal to 2 meters per second. The mass is given as 1 kg. Okay. So आपका क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेट the acceleration of the particle. A part, calculate the acceleration of the particle. Okay. So सबसे पहले मुझे बताइए, what is A? -4. A होता है AR R कैप प्लस A थीटा थीटा कैप। ठीक है, AR क्या होता है बताइए? सर्कुलर मोशन केस में AR क्या होता है? सर माइनस माइनस
माइनस v स्क्वायर बाय r होता है, Yes. सर है ना। माइनस v कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर r दिया हुआ है कितना 1, तो ar कितना हो जाएगा -4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। 8 थीटा क्या होता है, सर dv by dt। By dt. d by dt ऑफ स्पीड। स्पीड कितना है 2 मीटर्स पर सेकंड, कांस्टेंट है, Yes, sir। तो 8 थीटा कितना हो जाएगा 0। अब बी पार्ट लिखिए, कैलकुलेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। द फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। Okay, so what would the force? Fr is equal to MAR and F theta is equal to M into A theta. Just as we were resolving the force in x and y direction, ki Fx is equal to M into Ax and Fy is equal to M into Ay. Similarly, Fr is equal to M into AR and F theta is equal to M into A theta. So Fr is equal to mass is 1 kg. AR is -4 meters per second square. So Fr is equal to -4 and F theta is equal to 1 into A theta is 0. So F theta is 0. So Fr is -4. So tell me in which direction force is directed? Inward. See, R cap is in this direction. Yes. So minus means the force is direction in this. -1 Okay, towards the center. Yes, center. Okay, understood? Yes, sir। Yes. Okay. अब आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई द क्वेश्चन असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर 53। जिन लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर 53। Okay, Shivam 2√5. Okay. Asif Sachin 2√5. Abhinav 2√5. Okay. So guys, here the velocity is the speed is given as 2 into t, right? Okay, so speed is given as 2 into t. So here speed is constant or changing? Variable. Variable, right? So here A theta will not be 0. Okay. देखते हैं इसको। So assignment 2.1 question number 53. Okay. So here same question is given. R is equal to 1. Mass is 2 kg. Okay. But speed is not constant. Here speed is given as 2 into t. And we need to find the
force at t is equal to 1/2 second. Okay. So now tell me, what is AR? जल्दी बताइए, बोलिए. माइनस बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू AR is minus V square by R. V is what? माइनस 2 और 2 Minus 2t. So 2t square by R. So it will be minus 4t square by R. So AR will be t is equal to half. Minus 4 into half square. R is given as 1. 1. So AR is equal to what? Minus 1. Yes, sir. So FR is equal to what? M into AR. Mass is given as 2 kg and AR is minus 1. So FR is minus 2 Newton. Clear? Okay. Now tell me, what is A theta? D by dt of speed. Okay. So it is d by dt of what is speed? 2t. 2t. So 2t का differentiation क्या होगा? 2 होगा. 2. Okay. So what is f theta now? F theta is m into A theta. Mass is given as 2 kg. A theta is 2. It is 4 Newton. Okay. We need to find the net force. So what is net force? It is under root of Fr square plus F theta square. What is Fr square? It is 2 square plus F theta is 4 square. So 2 square is 4 and 4 square is 16. So it is under root of 20. Under root of 20, that means it is 2 root 5 Newton. Okay. So the answer is going to be C. Okay. So now in the homework, try assignment 2.1, question number 17. Assignment 2.1, question number 17, and assignment 2.3, question number 23, 25, 25. Okay, yeah, these all questions. ये 3 questions जो हैं आप करके लाइए, फिर अगली क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. 17 आप दे चुके हैं सर 2.1 का. क्या 17 हो चुका है सर 2.1 का. 17 क्या है क्वेश्चन, बोलेंगे आप मुझे? सर वो एक रोप है सर और वेट के टर्म मास नहीं दे रखा है, वेट दे रखा है. सर उसने पूछा ग्रेटेस्ट टेंशन which the rope can safely bears and time sir. Okay. Okay. So and what is the look at assignment 2.3 question number 17. 2.3 का 17 क्या है बताइए? Sir, a car is traveling with the linear velocity v on the circular road of the radius r. हाँ सर यही है सर. Okay. A meter per second square. And Yeah. So it is the circular का ही है ना ये? yes sir, resultant acceleration. Yeah. So यहाँ पर assignment 2.3 का 17 है ये. Okay. So 3 का 17 और उसी का 23 और 25. तो 3 क्वेश्चन आप करके लाइए घर से, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे. और बाकी पिछले भी मैंने फ्रिक्शन के भी दिए हैं काफी, 7-8 क्वेश्चन और 3 ये, तो टोटल 10 के आसपास क्वेश्चन हैं आप आज. फर्स्ट दिखाइएगा. क्या हुआ? फर्स्ट स्लाइड सर. फर्स्ट स्लाइड? यस सर. फर्स्ट स्लाइड अभी इसको लिख लेने दीजिए, फिर फर्स्ट स्लाइड कर देंगे. ओके सर. टेस्ट में काइनेमेटिक्स होगा या डायनेमिक्स का पूरा पार्ट होगा सर? टेस्ट में सर हम जो न्यूटन्स लॉ करेंगे आखिरी तक वो पूरा आएगा जहां तक पढ़ा हमने. काइनेमेटिक्स भी आएगा पूरा और डायनामिक्स भी पूरा आएगा जब तक न्यूटन्स लॉ होगा.
ओके सर। सर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन अभी सब बाकी है उसमें से। क्या हुआ? फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन अभी बाकी है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ। बिल्कुल, असाइनमेंट डिस्कशन के बाद ही टेस्ट होगा सर, उससे पहले थोड़ी दूंगा टेस्ट में। एक एक क्वेश्चन आपका डिस्कस होगा, उसके बाद में टेस्ट होगा। सर यस सर, वो आपने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया ना, उसकी लिंक शेयर करना, मैं उसमें ऐड नहीं हूँ अभी। टेलीग्राम की लिंक में कोई शेयर कर दो यार भाई इसको। सर एक डाउट था सर। हाँ पूछिए। सर जो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा है सर, ये हर केस में सर मतलब वैलिड होगा? नहीं, v इज इक्वल टू r ओमेगा, जो v इज स्पीड इज इक्वल टू r ओमेगा इज वैलिड ओनली फॉर द सर्कुलर मोशन। ओके, विदिता ने आपको सेंड कर दिया है टेलीग्राम। हाँ पूछिए। ओके सर, थैंक यू। Okay, so let's end this class today and we'll meet in the next class. Okay. सर फर्स्ट स्लाइड दिखाइएगा, फर्स्ट स्लाइड से ज्वाइन किए थे हम। सर क्लास की पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। ओके, हमने लास्ट क्लास की नहीं की थी ना अभी? नो सर, लास्ट की भी मैंने नहीं हुई है। लास्ट की भी नहीं। ओके ओके, आई विल अपलोड दिस टुडे। ओके गाइस, सो गुड बाय। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर इसके बाद वाला एक पेज दिखा दीजिए। अरे सर, मैं आपको भेज दूंगा ना, आप चिंता क्यों करते हो? पीडीएफ भेजूंगा ना मैं। पता नहीं आपको लिखने में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है। आराम से भेजूंगा मैं पीडीएफ। ओके सर, हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, सी यू।